Good afternoon students, welcome to today's video lecture of 3D geometry. In the last class we discussed about the types of lines in R3. So types of lines in R3 क्या है? Types of lines in space or 3D or R3. Four types of lines थे. 2D में तीन types of lines थे. So types of lines in space 3D और R3 थी. पहली थी coincident और identical lines और आइडेंटिकल या इक्वल लाइंस, ठीक है। फिर दूसरी कौन सी थी? पैरेलल लाइंस, और इनकी हमने कंडीशंस डिटेल में की थी कि लाइंस पैरेलल कब होंगी, कोइंसिडेंट कब होंगी। फिर थर्ड टाइप ऑफ लाइंस क्या थी? इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और फोर्थ लाइंस कौन सी थी? स्क्यू और नॉन कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर और स्क्यू लाइंस, नॉन कोप्लेनर और स्क्यू लाइन। So let us continue from where we had stopped. तो पहला टॉपिक आपका जो है वो है shortest distance between तीन फॉर्मूला बाकी है, तीन थ्योरी बाकी है। shortest distance between two skew और non-coplanar lines और non-coplanar lines, shortest distance between skew और non-coplanar lines, ठीक है। तो suppose here L1 L2 are skew lines, L1 L2 are skew और non-coplanar lines are skew lines. Let L1 में रखूंगा, let L1 में रखूंगा R is equal to A1 plus lambda B1, L2 का इक्वेशन R is equal to A2 plus mu B2। हाँ, यहाँ पे lambda belongs to R है और mu belongs to R है। तो L1 L2 और स्क्यू लाइंस, तो उसका मतलब वो कैसी लाइंस है? नॉन पैरेलल, नॉन इंटरसेक्टिंग, मतलब दे डू नॉट डिटरमाइन अ यूनिक प्लेन। तो आपको उसकी कंडीशंस अगर याद है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू स्क्यू लाइंस बहुत इजीली तुरंत आपको फॉर्मूला आ जाएगा। नाउ हियर L1 and L2 आर स्क्यू लाइंस, तो जस्ट एक रफ डायग्राम में बनाता हूं। This is okay. Actually, skew lines को हम प्लेन मतलब बोर्ड पे नहीं बता सकते, पर जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग इस पे पॉइंट है A, A1 बार और इसका डायरेक्शन है B1 बार, इसका डायरेक्शन था B2 बार और इस पर जो पॉइंट था वो था B, A2 बार, ठीक है। Now here L1 and L2 are shortest distance between the two skew lines or non-coplanar lines. L1 and L2 are skew lines. So here lines L1 L2, so lines L1 and L2 are neither parallel, मतलब वो पैरेलल नहीं है, nor intersecting। अब वो पैरेलल नहीं है। अगर L1 और L2 पैरेलल होती तो B1 और B2 कैसे होते? कोलिनियर। सो B1 क्रॉस B2 कैसे आ रहा? नॉन वेक्टर आ रहा। सो हियर B1 B2 आर नॉन कोलिनियर होगा, नॉन कोलिनियर, ये आपको पता ही है, ये हमने पिछले टाइम कंडीशन मैंने आपको सिखाई थी। सो B1 क्रॉस B2 नल वेक्टर नहीं आएगा, B1 क्रॉस B2 नल वेक्टर नहीं आएगा। दूसरा, ये दोनों लाइंस कैसी है? ये दोनों लाइंस neither parallel nor intersecting, मतलब they are skew lines मतलब non coplanar। so here L1 L2 are non coplanar। तो आपको याद है क्या कि वेक्टर AB फिर B1 और B2 नॉन कोप्लेनर होंगे, तो उसका बॉक्स therefore so okay वेक्टर AB, okay now here वेक्टर AB क्या होता है? वेक्टर AB होगा A2 minus A1 for A1 बार and B A2 बार। लाइंस L1 L2 कैसी है? लाइंस L1 and L2 are non coplanar, मतलब they do not determine a unique plane। उसका मतलब कि वेक्टर AB B1 और B2 will not be in the same plane। वेक्टर AB B1 B2 are non coplanar। Since they are non coplanar, what I can write? Their box is therefore box of AB, therefore box of
B1 B2 is not equal to 0. So therefore can I say it is box of A2 minus A1 B1 B2 is not equal to 0. इसका मतलब ये कंडीशन हमने की थी A2 minus A1 dot B1 cross B2 is not equal to 0. ये सेकंड कंडीशन थी. याद है अगर L1 और L2 and L2 are non-coplanar lines, B1 cross B2 is not equal to vector and A2 minus A1 dot B1 cross B2 is not equal to 0. तो shortest distance between them आपको याद रखना है कि for skew lines L1 and L2 for skew lines shortest distance between them is आपको सीधा फॉर्मूला याद रखना है. You have to remember the simplest formula okay for skew lines और डायरेक्टली आपको याद रखना है कि therefore shortest distance between skew lines L1 and L2 आपको याद रखना है since you know कि A2 minus A1 dot B1 cross B2 is not equal to 0 and B1 cross B2 is not equal to vector, तो सीधा याद रखना है will be mod of A2 minus A1 dot B1 cross B2 upon mod of B1 cross B2. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि shortest distance between two skew lines here L1 मैं सीधा याद रखता हूं L1 क्या थी R bar is equal to A1 plus lambda B1 where lambda belongs to R. L2 क्या था L2 का इक्वेशन आप लिखो. आपको इतना ही याद रखना है कि L2 का इक्वेशन है L2 लाइन का इक्वेशन है R bar is A2 bar plus mu D2 bar जहाँ पे mu belongs to R. तो आपको क्या याद रखना है कि L1 L2 are skew lines. अब देखो तीन चीजें आपको याद रखनी है कि L1 L2 are skew lines. Now here सीधा L1 L2 are skew lines. Therefore L1 L2 are non-parallel. So B1 cross B2 क्या आएगा? B1 cross B2 will not be equal to the vector. दूसरा A2 minus or you can say box of A2 minus A1 B1 B2 is again not equal to 0. इसका मतलब कि A2 minus A1 डॉट ये आपको याद रखना है कि नॉन कोप्लेनर के लिए ये चीज नॉट इक्वल टू 0 क्यों या नॉन कोप्लेनर के लिए आपको ये याद रखना है एंड B1 cross B2 not equal to one vector agreed है there are two lines so B1 cross B2 non parallel है therefore B1 cross B2 not equal to null vector और दूसरा ये मतलब नॉन कोप्लेनर तो box of A2 minus A1 B1 B2 is not equal to 0 उसका मतलब A2 minus A1 dot A2 minus A1 dot B1 cross B2 is not equal to 0. तो आपको याद रखना है कि shortest distance between the two skew lines L1 and L2 is आप लोगों ने दोनों चीजें निकाली है तो उसका मॉड दे देना है. आपने A1 cross B2 निकाला होगा, आपने ये निकाला होगा, वेरी सिंपल. तो क्या आएगा आंसर? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू स्क्यू लाइंस इज मॉडुलस ऑफ A2 minus A1 dot B1 cross B2 upon mod of B1 cross B2 finished. Upon mod of B1 cross B2 finished. आपको इतना ही याद रखना है. सिंपल. अब दूसरी एक नोट याद रखो. डिस्टेंस between two intersecting lines is 0. डिस्टेंस between two intersecting lines अगर आपने फाइंड किया दो लाइंस हैं और अगर आपने हमारी कंडीशन से चेक किया कि वो दो लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं तो क्या होगा? तो डेफिनेटली अगर दो लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं, if two lines are intersecting then distance between the two intersecting lines is 0. ये आपको याद रखना है. फिर shortest distance between two parallel lines between two
पैरेलल लाइंस ये हमको सीखना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ओके, हियर लेट L1 and L2, मैं रखता हूं लेट L1 R bar is equal to A1 plus lambda B bar, L2 R bar is A2 plus mu B bar. Okay, lambda belongs to R and mu belongs to R. Here डिस्टेंस हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस निकालना है। इधर आप ध्यान से देखो कि L1 and L2 are parallel here. L1 parallel to L2 here, L1 parallel to L2। और इधर खासियत क्या है अगर आप ध्यान से देखो तो डायरेक्शन ऑफ L1 is equal to डायरेक्शन ऑफ L2 दिया है टेक्स्ट बुक की थियरी में। सो आई हैव टू गिव यू इन दैट वे ओनली कि L1 और L2 का डायरेक्शन इक्वल है, मतलब दे कैन बी इन सेम डायरेक्शन। L1 का डायरेक्शन भी d बार है और L2 का डायरेक्शन भी d बार है। ओके, और इस पे जो पॉइंट है A पे, A1 पे जो पॉइंट है वो है A1 बार और इस पे जो पॉइंट है वो है B A2 बार। ओके, सो हियर डायरेक्शन ऑफ L1, पॉइंट ऑन L1 क्या है? हियर A1 बार belongs to L1, L1 is parallel to L2, L1 is parallel to L2, that is given। तो आप ध्यान से देखोगे कि डायरेक्शन ऑफ L1, therefore here direction of L1 is equal to direction of L2। Direction of L1 is b bar, direction of L2 is also b bar, so that is equal to b bar। Clear? और दूसरा जो पर वो तो कोइंसिडेंट लाइन से भी हो सकता है कि L1 और L2 का कोइंसिडेंट हो, तो क्या बताने का कि A जो L1 पे है वो L2 पे नहीं आएगा। A1 बार belongs to L1 पर A1 बार does not belong to L2। और दूसरा B A2 बार वो किस पे होगा? वो L2 पे होगा पर वो L1 पे नहीं होगा। Since L1 L2 are given lines and L1 is parallel to L2, direction of L1 is equal to direction of L2 is equal to B। A belongs to L1 but it does not belong to L2, B belongs to L2 and B does not belong to L1। So thus it's obvious कि वेक्टर AB क्रॉस B बार क्या आएगा? AB क्रॉस, इधर आप डायग्राम में ध्यान से देखो, अगर आप देखो कि वेक्टर AB is something like this, vector AB or B towards right है और vector AB, so can I say here vector AB, here vector AB क्या होगा? A2 minus A1। so here vector AB which is A2 minus A1 for A1 bar, B A2 bar। so can I say okay, now here vector AB and vector AB and D bar are non-collinear, they are not in same or opposite direction। so since they are non-collinear vectors, can I say AB cross B bar is not equal to null vector? so therefore I can also write A2 minus A1 cross B bar is not equal to null vector। Simple, A2 minus A1 I can write A2 minus A1। so here AB and B are non-collinear, AB and B same और opposite direction में नहीं है, वेक्टर AB और B bar same और opposite direction में नहीं है, so they are non-collinear, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट not equal to null vector होगा। so therefore A2 minus A1 cross B not equal to null vector होगा। तो आपको याद रखना है shortest distance between two parallel lines, between two parallel lines, L1 and L2 क्या लिखेंगे? okay right here the shortest distance between two parallel lines, L1 और L2 होगा mod of AB cross L1, sorry
shortest distance between parallel lines L1 and L2 is equal to ओके, यहाँ पर क्या निकाला है, A क्रॉस L, सीधा आपको याद रखना है कि is mod of AB क्रॉस B अपॉन mod B, और mod AB क्या है, what is that, you remember that as mod of, लिखा हूँ नीचे, so shortest distance between the two parallel lines will be equal to shortest distance between two parallel lines L1 and L2 will be equal to mod of AB cross B और mod B, और वेक्टर AB क्या है, A2 minus A1, so that is mod of A2 minus A1 cross B, mod of A2 minus A1 cross B upon mod B, upon mod B। तो इसी चीज को आप डायरेक्टली याद रखना है कि L1 और L2 के बीच में हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ढूंढना है। L1 और L2 ये है हियर, L1 क्या थी, L1 का इक्वेशन क्या था, L1 L2 are two parallel lines, therefore L1 parallel to L2। L1 का इक्वेशन क्या रखा था हमने, R bar is A1 bar plus lambda B bar, और L2 का इक्वेशन क्या रखा था, R bar is A2 bar plus mu B bar, और हाँ lambda belongs to R, mu belongs to R, बस ओके। तुरंत ही ये फॉर्मूला रिवाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे L1 is parallel to L2, so can I say क्या क्या पॉइंट्स होंगे, डायरेक्शन ऑफ here L1 is parallel to L2, therefore direction of L1, ओके पहले क्या रखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ लाइन L1 क्या दिया है, is equal to डायरेक्शन ऑफ L2 कितना दिया है, B बार, ओके। और दूसरा here जो पॉइंट A है A1 बार वो किस पे होगा, L1 पे, पर वो ऑब्वियसली किस पे नहीं होगा, वो A1 L2 पे नहीं होगा। दूसरा पॉइंट B किस पे आएगा, पॉइंट B इज ऑन L2, और B किस पे नहीं आएगा, किस पे नहीं आएगा, A1 बार L1 पे है पर A1 बार L2 पे नहीं आएगा, तो इधर does not belong to आएगा, okay। So here A1 bar belongs to L1 but it does not belong to L2, and A2 bar belongs to L2 but it does not belong to L1। और दूसरा क्या कि आपको पता है कि here वेक्टर AB और B bar are non-collinear, तो डेफिनेटली AB क्रॉस B क्या आएगा, नॉट इक्वल टू नल वेक्टर, तो देयरफॉर A2 minus A1 क्रॉस B क्या आएगा, नॉट इक्वल टू नल वेक्टर, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस L1 और L2, जहां पे L1 और L2 का ये इक्वेशन है, क्या आएगा फॉर्मूला, जल्दी से रिकॉल करो, अभी 1 मिनट या 2 मिनट पहले मैंने लिखा है कि देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस L1 and L2, जहां पे L1 का इक्वेशन R bar is A1 plus lambda B, L2 R bar is equal to L2 plus mu B bar is mod of AB cross B upon mod B, सिंपल। और आपको सारी चीजें पता है, ये A बार क्या है, वेक्टर, यदि सारे नोटेशन हम लोग 2 बार लिख चुके हैं, तो ये कितना हो जाएगा, mod of A2 minus A1 क्रॉस B अपॉन mod B। इतनी ही थियरी
एक्सरसाइज 11.2 मतलब लाइन से स्पेस में है पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट आउटसाइड पॉइंट फ्रॉम अ गिवन लाइन, वो मैं आपको बता दूंगा। और आपको ये याद रखना है कि v बार इज नॉट इक्वल टू नल वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ L1 क्या था? डायरेक्शन ऑफ L1 क्या था? डायरेक्शन ऑफ L2 था। कितना दिया? v बार। पर आपको याद रखना है कि डायरेक्शन कभी नल वेक्टर नहीं आता। ठीक है? ओके, सो दैट फिनिशेस द theory for the shortest distance between the two parallel lines। एक दूसरी कुछ दो चार तो नहीं मारा है मैंने, नहीं वो सही है। लास्ट थियरी बाकी है 10 मिनट एक्टिविटी डायरेक्शन वाटर एंड देन आई विल कंटिन्यू। Okay, so now let us continue and finish the last theory of this chapter. It is not given in the textbook, but they can ask in you can say board exams also, as well as GSET, or you can say competitive exams, because it becomes an application of shortest distance between the two parallel lines. So next topic is perpendicular distance from outside point, perpendicular distance from outside point to a given line. Perpendicular distance from outside point suppose over P रखता हूँ, from outside point P to given line L, perpendicular distance from outside point P to a given line L. Okay, let line L में रखता हूँ r bar is equal to a bar plus lambda b bar, जहाँ पे lambda belongs to r। तो point on L क्या हो जाएगा? Point on L is a bar, direction of L is b bar, और here वो जो point है here वो point क्या है? a bar, और ये है a bar, और outside point क्या रखते हैं हम लोग? Here outside point हमने रखा है p bar। Let the outside point be p bar। ठीक है? Let the outside point be equal to p bar। Outside point on L a bar, direction of L b bar। So point on L क्या है? a bar। Okay, and outside point here, outside point is P बार। ठीक है? तो अब हमको क्या करना है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम P, मतलब ये हमारी लाइन L है और आउटसाइड पॉइंट P है, P बार ये लाइन L है, और उस पे जो पॉइंट है वो है A बार, और इस लाइन का डायरेक्शन है B बार। अब हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम P, हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट P टू द गिवन लाइन L ढूंढना है। सपोज यहां पे मैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर M रखता हूं, तो मुझे PM ढूंढना है, आउटसाइड पॉइंट कौन सा है? आउटसाइड पॉइंट है P बार, आउटसाइड पॉइंट है P बार। हियर P बार does not belong to line L, मतलब वो उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। सपोज मैं थ्रू P, अगर मैं थ्रू P एक लाइन ड्रॉ करता हूं जो L को परपेंडिकुलर है, आउटसाइड पॉइंट से हम एक लाइन परपेंडिकुलर टू L ड्रॉ कर सकते हैं। थ्रू P let M, let capital M be line parallel, let M be the line, the line drawn be parallel line, okay, let M be the line, let हम P से जो आउटसाइड पॉइंट है उससे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं M, जो है पैरेलल किसको? जो है पैरेलल L को। सो थ्रू पॉइंट P, थ्रू आउटसाइड पॉइंट P बार, let कैपिटल M, let
capital M be the line parallel to given line L, ठीक है। और फुट वाला परपेंडिकुलर M ये रखते हैं, X रखते हैं। ओके, सो यहाँ पे L और M कैसी लाइंस हैं? यहाँ पे L और M कैसी लाइंस हैं? Here L is parallel to M. Here L is parallel to M. Now here अगर आप ध्यान से देखो तो वेक्टर AP अगर आप सोचते हो, वेक्टर AP और B सेम और they are not collinear. Now here वेक्टर AP क्या होगा? Now A क्या है? ओके, L is parallel to M and here A क्या है? A बार, B क्या है? B बार, therefore वेक्टर AP क्या आएगा? B बार माइनस A बार, वेक्टर AP क्या है? B बार माइनस A बार। तो अब आपको पता है कि therefore AP, B बार are non collinear। Obviously AP वेक्टर और B वेक्टर सेम डायरेक्शन में नहीं है, so they are not in same direction, opposite direction, so they are not collinear। So AP cross B क्या आएगा? Not equal to null vector। AP cross B क्या आएगा? Not equal to null vector। Let PX let X be foot of perpendicular from point P to line L। तो आपको सीधा याद रखना है कि perpendicular distance from point P to the line L is nothing but actually, can I say distance between the two parallel lines L? Therefore shortest perpendicular, or I will write shortest perpendicular distance from point P to given line L is equal to perpendicular distance between two parallel lines is equal to perpendicular distance between parallel lines L and M। और आपको पता है कि दो पैरेलल लाइंस का डायरेक्शन हम कंसीडर कर सकते हैं, तो कैपिटल L का डायरेक्शन B बार है, M का डायरेक्शन भी हम B बार रख सकते हैं। तो आपको पता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस जो हमारी थ्योरी है वो क्या है? मॉड ऑफ AB क्रॉस B अपॉन मॉड B। तो उस लॉजिक से यहां पे आउटसाइड पॉइंट P की जगह आप अगर कनेक्ट करो डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस तो उसमें यहां पे B पॉइंट होगा, तो ये कितना हो जाएगा? डायरेक्टली यू कैन डू डायरेक्टली मॉड ऑफ AB क्रॉस B अपॉन मॉड B which is equal to mod of P minus A cross B upon mod B। That finishes the chapter, that finishes the theory for the exercise 11.3। Actually this is one of the chapter lines in 3D or lines in space। तो उसकी theory जितनी है आपको चाहिए है एक्स्ट्रा ये पॉइंट मैंने आपको दे दिया। हमने यहाँ पे जो भी सॉर्ट आउट किया मतलब कि आउटसाइड पॉइंट P की बात है, गिवन लाइन L है, तो आउटसाइड पॉइंट P से परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द गिवन लाइन L वो कितना आएगा? मॉड ऑफ AP क्रॉस L, सॉरी मॉड ऑफ AP क्रॉस B अपॉन मॉड B which is mod of P minus A cross B upon mod B। So here given line क्या है? given line L R bar is equal to A bar plus lambda B bar जहाँ पे lambda belongs to R। outside point कौन सा था? outside point था P bar। ओके, सो सीधा डिटेल में हमको कुछ लिखना नहीं है। दिस इज आवर लाइन L, उस पे एक पॉइंट है A बार इस लाइन का डायरेक्शन है, B बार यहाँ पे आउटसाइड पॉइंट है P बार। तो यहाँ से अगर मैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ PX, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू द गिवन लाइन इज इक्वल टू PX और वो है इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन
टू पैरेलल लाइंस L and N इसमें समझा दिया था। तो ये पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट A बार, this the point on the line L is A bar and P bar is the outside point. So here P bar does not belong to L. That point is very clearly we have done. So इधर मैं directly ये theorem देता हूँ कि here आपको सीधा सिंपल याद रखना है कि P bar does not belong to L. उसका मतलब here point P bar does not belong to L. Here P bar does not belong to line L. ठीक है, उसका मतलब अगर मैं R बार की जगह P बार रखूं तो सेटिस्फाई नहीं होगा, does not belong to line L. इसका इक्वेशन है R bar is equal to A bar plus lambda B bar. So therefore P bar cannot be A bar plus lambda B bar. आप अंडरस्टैंड कर लिखा है, मतलब R bar की जगह P bar लिखेंगे तो सेटिस्फाई नहीं होगा because point P is not on line L. Now through P मुझे ये perpendicular distance from P to the line L ढूंढना है. So through P मैं एक लाइन M ड्रॉ करता हूँ जो है पैरेलल टू L. Let L parallel to M. Let L parallel to M where P bar belongs to line M. तो सीधा here जो वेक्टर AB होगा, वेक्टर AP होगा, here वेक्टर AP कितना है, here A बार है हमारे पास, here okay P bar A बार होगा, so वेक्टर AP कितना होगा, P bar minus P bar. So now वेक्टर AP और B bar उसका नेगेटिव मैंने थ्रू द आउटसाइड पॉइंट P एक लाइन M ड्रॉ की जो पैरेलल टू L है, तो डायरेक्शन ऑफ L और डायरेक्शन ऑफ M सेम हो जाएंगे, तो इसका डायरेक्शन में B बार ऐसे सोच सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. अब हमको क्या ढूंढना है कि हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द आउटसाइड पॉइंट P टू द गिवन लाइन L मतलब Px ढूंढना है. नाउ AB वेक्टर अब ध्यान से देखो, तो वेक्टर AP और B बार कोलिनियर नहीं है, R नॉन कोलिनियर, R नॉन कोलिनियर, therefore AP क्रॉस B क्या आएगा, AP क्रॉस B नॉट इक्वल टू नल वेक्टर आएगा. तो आपको याद रखना है एंड फिर आप रखो लेट x इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P to line L. So therefore shortest distance perpendicular distance from outside point P to the given line L तो Px होगा, वो होगा distance between the two parallel lines L and M. तो आपको समझ में आ जाएगा AP क्रॉस B नॉट इक्वल टू वेक्टर, वहां से हमें क्या करना है, therefore Px therefore shortest perpendicular distance from outside point P to line L is equal to Px. वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा perpendicular distance between parallel lines L और M. और वो आपको थियरी पता है कि अगर L का इक्वेशन A बार R bar is A bar plus lambda B bar और M कितना था, R bar is equal to B bar plus एवर का नेटवर्क था, उस थियरी से आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो AP क्रॉस B mod of AP क्रॉस B upon mod B. And next we can also write what is AP, what is mod of AP, it is mod of P minus A क्रॉस B upon mod B. और B बार डायरेक्शन है, इसलिए वो नल वेक्टर नहीं होगा. So that is the shortest perpendicular distance from outside point P bar to the given line L. R bar is equal to A bar plus K lambda B bar. ये है डायरेक्शन वेक्टर AB क्रॉस B अपॉन mod B.
सिंपल, इतना ही है जो आपको याद रखना है। मॉड ऑफ बी माइनस ए क्रॉस बी अपॉन मॉड बी। टेक्स्ट बुक में पूरा मॉड क्या है, इससे से बेटर है आप ऐसे ही याद रखो, ठीक है। नो टीचर रिव्यू रॉन्ग। सो दैट इज द थियरी फॉर एक्सरसाइज 11.2 which we were doing, ठीक है। और ये फिनिश करना है थियरी फॉर द वन ऑफ द चैप्टर्स। ये जो 3D है, 3D ज्योमेट्री में एक्चुअली दो चैप्टर्स क्लब है, लाइंस इन स्पेस और प्लेन्स इन स्पेस। 11.1 11.2 is a one of the chapters, lines in space, और 11.3 is a exercise for a chapter, planes in space, ठीक है। So that finishes the theory. Now we can do the remaining questions of exercise 11.2. but उसके पहले I must give you the quick revision of all the points which we have done. Just 1 minute. So अब आपको याद रखना है कि टाइप्स ऑफ लाइंस इन 2D और R2 क्या था। टाइप्स ऑफ लाइंस इन 2D और R2 क्या था। पहला कोइंसिडेंट और आइडेंटिकल। पूरी थियरी आपको फिनिश करनी है, कोइंसिडेंट और आइडेंटिकल। सेकंड पैरेलल लाइंस। फिर तीसरा क्या था, फिर तीसरा था इंटरसेक्टिंग लाइंस। कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस आर स्पेशल केस ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब वैसे ही टाइप्स ऑफ लाइंस इन 3D करते हैं, वो करें। टाइप्स ऑफ लाइंस इन स्पेस और 3D और R3 क्या थी। टाइप्स ऑफ लाइंस इन 3D और R3 आपको ये पूरा अच्छे तरीके से याद रखना है। कौन कौन सी ये 3 लाइंस तो आएंगी और उसके साथ कौन सी लाइंस आएंगी, स्क्यू या नॉन कोप्लेनर, स्क्यू या नॉन कोप्लेनर, ठीक है। अभी जो मैं थियरी कर रहा हूं या अभी जो भी मैं पूरा लिख रहा हूं वो क्या होने वाला है, दैट विल बी द क्विक रिवीजन ऑफ ऑल द पॉइंट्स डिस्कस्ड बिटवीन द टू स्क्यू लाइंस। मतलब ओके, यू अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ लाइंस इन स्पेस 3D और R3। पहली कौन सी आएगी, कोइंसिडेंट और आइडेंटिकल लाइंस। You can also use the word equal lines. आगे यूज होता है, but still parallel lines. Parallel lines. Third, कौन सी थी, intersecting. And fourth type of lines, intersecting lines. And fourth type of lines, खास वर्ड यूज करने का, skew, SKEW, और non-coplanar lines. अब हमने जो ऑलरेडी सीखा हुआ है कि two parallel lines determine a unique plane, ये आपको पता है, determine a unique plane। तो आपको खाली याद रखना है। फिर two intersecting lines also determine a unique plane, और जो लाइंस एक प्लेन को डिटरमाइन करती है उसको कोप्लेनर लाइंस बोलते हैं, वो आपको पता है। और जो लाइंस यूनिक प्लेन को डिटरमाइन नहीं करती इसको नॉन कोप्लेनर या स्क्यू लाइंस बोलेंगे, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना पड़ेगा टू पैरेलल लाइंस डिटरमाइन यूनिक प्लेन। फिर आपको ये भी पता है कि टू intersecting lines determine a unique plane, ठीक है। अब आपको याद रखना है डेफिनेशन, कोप्लेनर लाइंस। तो कौन सी कोप्लेनर लाइंस है, लाइंस which are lying in the same plane, lines lying in the same plane, lines lying in the same plane, lines lying in the same plane are called coplanar lines, ठीक है, are called coplanar lines। हो गया। उसके बाद क्या था, are called coplanar lines। अब coplanar lines जो है वो एक यूनिक प्लेन डिटरमाइन करेंगी। तो कौन सी लाइंस यूनिक प्लेन डिटरमाइन करेंगे, पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। Lines lying in the same plane
are called coplanar lines. Coplanar lines determine a unique plane, उसका मतलब there exists a unique plane passing through the coplanar lines. और कौन सी लाइंस को पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस determine a unique plane? तो आपको याद रखना है कि coplanar lines can be parallel or intersecting. मतलब coplanar lines are either parallel or intersecting. अब आपको याद रखना है parallel lines are always coplanar. मतलब अगर लाइंस पैरेलल है तो पैरेलल लाइंस कैसी हैं? आर कोप्लेनर. इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसी हैं? कोप्लेनर. इंटरसेक्टिंग लाइंस आर कोप्लेनर बिकॉज़ दे डिटरमाइन अ यूनिक प्लेन. और अगर कोप्लेनर लाइंस को बोलता है कोप्लेनर लाइंस कैन बी पैरेलल और इंटरसेक्टिंग. और अब नॉन कोप्लेनर लाइंस उसका नाम क्या था सेकंड में? स्क्यू लाइंस. सो नॉन कोप्लेनर और स्क्यू लाइंस नॉन कोप्लेनर और स्क्यू लाइंस. तो स्क्यू लाइंस कैसी होती है? लाइंस नॉट लाइंग इन द सेम प्लेन, मतलब वो एक यूनिक प्लेन डिटरमाइन नहीं करेंगे. ओके, तो आपको याद रखना है लाइंस नॉट लाइंग in the same plane lines not lying in the same plane are called non-coplanar or skew lines. फिर आपको याद रखना है कि skew और non-coplanar lines do not determine a unique plane. उसका मतलब पैरेलल लाइंस एक यूनिक प्लेन डिटरमाइन करते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस एक यूनिक प्लेन डिटरमाइन करते हैं. उसका मतलब स्क्यू लाइंस है non-coplanar lines पैरेलल नहीं हो सकती और इंटरसेक्टिंग नहीं हो सकती. उसका मतलब स्क्यू लाइंस are, आपको याद रखना है, neither parallel nor intersecting. या आप ऐसा याद रख सकते हो non-coplanar lines are not parallel, मतलब वो पैरेलल नहीं है, not parallel and not intersecting. ठीक है कि फिर हमने थियरी क्या की थी कि अगर लाइंस पैरेलल है, कोप्लेनर है तो क्या याद रखना है? और अगर दो लाइंस पैरेलल है, दो लाइंस कोप्लेनर हो सकती है या नॉन कोप्लेनर हो सकती है. तो उसके लिए एक कंडीशन, कोप्लेनर के लिए कंडीशन, नॉन कोप्लेनर के लिए भी एक कंडीशन. राइट ना? उसके लिए आपको सीधा याद रखना है, हमने दो लाइन क्या रखेंगे? लेट L1 तो पहली लाइन R bar is A1 plus lambda B1 where lambda belongs to R. L2 where R bar is A2 plus mu B2 where mu belongs to R. So दो लाइंस में हमेशा ये याद रखना है. और आपको क्या याद रखना है कि पॉइंट ऑन L1 क्या है? A1 बार. फिर डायरेक्शन ऑफ L1 क्या है? B1 बार. ओके, therefore फिर पॉइंट ऑन L2 वो क्या था? A2 बार. डायरेक्शन ऑफ लाइन L2 क्या था? B2 बार. और हाँ, आपको क्या रखना है कि B1 cannot be null vector, B2 is not equal to null vector. और here हाँ ये याद रखना है, A क्या था? A1 बार और B क्या था? B2 बार. सो A भी आपको याद रखना है. अब पहला केस क्या होगा? हमको याद रखना है कंडीशन फॉर द लाइंस
this L1 and L2 to be conditions for the lines L1 and L2 to be coplanar. तो हेडिंग क्या है? Lines L1 L2 are coplanar. Lines L1 L2 are coplanar. So therefore, can I say L1 L2 are parallel or intersecting? उसके डिटेल में नहीं जाना है हमको, तो आपको याद रखना है कि कैन यू करेक्ट बॉक्स ऑफ AB, मतलब वो एक ही प्लेन में आएंगे, तो वेक्टर AB ये ऐसे आपको याद रखना है, वेक्टर AB B1 B2, वेक्टर AB B1 B2 आर कोप्लेनर हो जाएंगे. इट्स ऑब्वियस, डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. सो देयरफॉर क्या थियरी A2 minus A1 A2 minus A1 वेक्टर AB क्या आएगा? therefore AB वैल्यू वेक्टर AB क्या होगा? A2 minus A1. so A2 minus A1 B1 B2 are coplanar. no we will not remember this way, हम डायरेक्टली याद रखना है. okay, so very clear. so lines L1 and L2 are coplanar, so they are parallel or intersecting. तो आपको सीधा याद रखना है कि A2 minus A1 या box of A2 minus A1 B1 B2 वो क्या था? 0. therefore हमने कंडीशन क्या रखी? A2 minus A1 dot B1 cross B2 will be 0. फिर लेट A1 क्या रखा था हमने? लेट A1 हमने रखा था x1 y1 z1. A2 क्या था? x2 y2 z2. क्या याद रखना है? L1 और L2 अगर कोप्लेनर है तो बॉक्स ऑफ A2 minus A1 B1 B2 will be 0. मतलब A2 minus A1 dot A1 cross B2 will be 0. फिर जहां पे सारा नोटेशंस क्या है वो मैंने आपको समझा दिया है, अभी उसके बारे में डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. तो A2 minus A1 क्या आएगा? A2 minus A1 आएगा x2 minus x1 y2 minus y1 और z2 minus z1. so therefore and B1 क्या था? उसके कंपोनेंट्स A1 B1 C1 और B2 क्या था? A2 B2 C2. तो यहाँ पे L1 और L2 कैसी लाइंस हैं? कोप्लेनर. L1 और L2 कोप्लेनर हैं, तो डायरेक्टली सिंस दे आर कोप्लेनर लाइंस, so therefore यहाँ पे बॉक्स ऑफ A2 minus A1 B1 B2 L1 and L2 are coplanar. now here कौन सी लाइंस थी? here L1 L2 are coplanar, तो वो पैरेलल और इंटरसेक्टिंग तो होंगे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर आपको ये याद है कि बॉक्स ऑफ A2 minus A1 B1 B2 0. तो एक्सपांशन ऑफ डिटरमिनेंट क्या आएगा? ये कंडीशन x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 और इसके कंपोनेंट्स A1 B1 C1 A2 B2 C2. this will be equal to 0. this will be equal to 0. so if the lines are coplanar then this determinant will be equal to 0. ठीक है, ये हो गया. तो that part we have finished. okay, now so और हाँ, अगर ये दो लाइन उसमें आपको नोट याद रखना है, अगर L1 और L2 पैरेलल है for L1 पैरेलल L2 B1 क्रॉस B2 क्या है? नल वेक्टर. क्या आपको याद रखना है कि नोट for parallel lines, for parallel coplanar, मतलब coplanar lines can be parallel or intersecting. so for parallel coplanar lines L1 and L2 B1 cross B2 नल वेक्टर होगा. और अगर ये लाइंस कैसी हैं? इंटरसेक्टिंग. कोप्लेनर लाइन तो कैसी होती है? कोप्लेनर तो इंटरसेक्टिंग या पैरेलल, तो पैरेलल में B1 क्रॉस B2 नल वेक्टर आएगा. और दूसरा फॉर इंटरसेक्टिंग कोप्लेनर लाइंस, फॉर इंटरसेक्टिंग कोप्लेनर लाइंस L1, L2 B1 क्रॉस B2 नल वेक्टर नहीं आएगा.
ये थियरी आपको अगर याद है तो दो लाइंस के बीच में कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, हाउ टू आइडेंटिफाई द टू लाइंस, हाउ टू आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ लाइंस, अगर हमको वो करना है तो दिस विल बी कैन फिनिश। ये हो गया हमारा थियरी फॉर कोप्लेनर लाइंस। और दूसरा, अब अगर लाइंस स्क्यू है तो क्या होगा वो आप याद रखना है। जस्ट आई विल हैव सम वाटर एंड देन आई विल कंटिन्यू। ओके, हो गया कि कोप्लेनर लाइंस है, फिर लाइंस आर कोप्लेनर, ये हो गया। फिर L1 और L2 वही है, L1 और L2 वही लाइंस हैं। सो लाइंस L1 L2 आर नॉन कोप्लेनर और स्क्यू लाइंस L1 और L2 आर नॉन कोप्लेनर और स्क्यू। L1 क्या था? L1 कैसी थी? L1 का इक्वेशन था r bar is a1 bar plus lambda b1, that is okay, लिख दिया तो a2 plus mu b2 bar, यहाँ पे lambda belongs to r, mu belongs to r. Now L1 and L2 are skew. So based on that logic, can you say that since they are skew, they are neither parallel nor intersecting. So L1 L2 कैसे हो जाएंगे? So therefore L1 L2 are neither parallel nor intersecting. Understood? मतलब वो parallel भी नहीं है और intersecting भी नहीं है। तो therefore उनके डायरेक्शंस का क्रॉस प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2 का क्रॉस प्रोडक्ट नॉन वेक्टर नहीं आएगा। दूसरा कि हियर जो वेक्टर ab होगा वो है a2 माइनस a1। तो सीधा आपको याद रखना था, तो आपको सीधा याद रखना था जो मैंने आपको क्या बोला था कि वेक्टर ab के बॉक्स ऑफ a2 माइनस a1 ऐसे हमने याद रखा था। वैसे भी याद रख सकते हो कि ab ओके अगर यू कैन तो वो एक ही प्लेन में नहीं आएंगे। नाउ वेक्टर AB B1 और B2 नॉन कोप्लेनर होंगे क्योंकि लाइंस कैसी है? स्क्यू, मतलब सो AB B1 B2 आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, तो वो एक ही प्लेन में नहीं आएंगे। तो उनका बॉक्स AB B1 B2 जीरो नहीं होगा। सीधा आपको याद रखना है कि लाइंस L1 और L2 स्क्यू है, तो कुछ स्टूडेंट तो सीधा रट्टा मार लेंगे या उन्होंने याद कर लिया होगा L1 ये है L2 ये है, पर वो लाइन स्क्यू है, उसका मतलब B1 क्रॉस B2 नॉन वेक्टर नहीं है। और दूसरा क्या कि बॉक्स ऑफ A2 माइनस A1 B1 B2 इज नॉट इक्वल टू 0। फिनिश, इतना ही आपको याद रखना है। और नेक्स्ट जो मैं अब लिखूंगा उसमें डिटेल में नहीं लिखूंगा, सीधा मैं रिजल्ट लिखने वाला हूं। तो इसमें क्या है? A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 क्या आएगा? नॉट इक्वल टू 0। क्या आएगा? नॉट इक्वल टू 0। ओके, नाउ अब हमको क्या करना है? टाइप्स ऑफ लाइंस को आइडेंटिफाई करना है। L1 एंड L2 are identical lines. L1 and L2 are identical or coincident lines. तो अब coincident और identical lines, coincident and identical lines. तो ये जो लाइन है, यही लाइन L1 है और यही लाइन L2 है। L1 पे जो पॉइंट था वो था A1 बार और L1 का डायरेक्शन हमने क्या रखा था? B1 बार। L2 पे जो पॉइंट था वो था B A2 बार और दूसरा L2 का डायरेक्शन B2
B2 बार था, सपोज आई एम कीपिंग एज B2 बार, ठीक है, आई एम कीपिंग एज B2 बार। तो हियर L1 L2 आर आइडेंटिकल, तो सीधा अब सारी चीजें आपको रिकॉल करनी पड़ेगी और डायरेक्ट आंसर लिखना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे L1 और L2 कैसी लाइन से आइडेंटिकल, L1 R bar is equal to A1 bar plus लैम्डा B1 बार, ऐसा मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये चीज आपको पता है। So definitely here L1 and L2 are identical lines, L1 L2 are coincident, मतलब they are identical, मतलब they are equal। तो उस लॉजिक से B1 क्रॉस B2 क्या है, तो उस लॉजिक में B1 क्रॉस B2 नल वेक्टर आएगा, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या है, अगर आप देखते हो AB वेक्टर, इसी वेक्टर को आप नीचे लिख दो, ये है सपोज दिस इज द पॉइंट B AB bar, तो वेक्टर AB is towards right, B1 bar भी also towards right है, so can I say B1 cross B2 will be null vector, B1 cross B2, B1 और B2 सेम डायरेक्शन में है, so here B1 B2 are collinear, so therefore उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, उनका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा null vector, and similarly वेक्टर AB और B1 are collinear भी होंगे, so definitely AB, so since they are collinear, so AB cross B1 क्या आएगा, therefore AB cross B1 भी null वेक्टर आएगा। और AB cross B1 को आप कैसे सोच सकते हो, A2 minus A1 cross B1 is null वेक्टर, ठीक है। इसको रिजल्ट नंबर 1 लिखो और इसको रिजल्ट नंबर 2 लिखो। तो आपको याद रखना है कि so 1 and 2 are conditions for lines for L1 L2 to be coincident। तो सेकंड केस में क्या आएगा, L1 और L2 कैसी हैं, पैरेलल लाइंस। सेकंड केस में आप लिखो पैरेलल लाइन, सो हियर L1 is parallel to L2, और फिर उसका डायग्राम ड्रॉ कर दो, उसका डायग्राम आप ड्रॉ कर दो। सेकंड केस, सेकंड टाइप ऑफ लाइंस होती हैं पैरेलल लाइंस, सो L1 और L2 कैसी हैं, पैरेलल लाइंस। सो हियर L1 L2 are parallel, okay, now तो डेफिनेटली पैरेलल लाइंस क्या करती है, एक यूनिक प्लेन डिटरमाइन करती है। तो जो स्टैंडर्ड नोटेशन है L1 क्या है, L2 क्या है, प्लेन में आप बता दो, प्लेन का नाम बताने की जरूरत नहीं है। और फिर इंटरसेक्टिंग में भी हम उतना ही लिखेंगे तो बहुत इजीली आ जाएगा। तो अब एक प्लेन है, इस प्लेन के अंदर there are two parallel lines, the two parallel lines L1 and L2, the two parallel lines L1 and L2, they determine a unique plane। क्या दो प्लेन पैरेलल है, सो मतलब वो दो प्लेन हो गई। सो L1 और L2, L1 पे कौन सा पॉइंट है, L1 पे एक पॉइंट है A1 बार, और इसका डायरेक्शन क्या था, L1 का डायरेक्शन था B1 बार, दिस इज आवर L1, और L2 पे जो पॉइंट है वो क्या था, L2 पे जो पॉइंट है वो है B A2 बार, और उसका डायरेक्शन क्या रखा था, B2 बार, दिस इज आवर लाइन L2, एंड देयर यूनिक प्लेन इज 5। आपको लिखना है 4 लिखना है तो भी चलेगा, बिकॉज़ इट इज हमारे यूनिक प्लेन। नाउ here L1 and L2 are parallel, so can I say here B1 और B2, L1 का डायरेक्शन B1 है, L2 का डायरेक्शन B2 है, so here B1 B2 are in same or opposite direction, so they are collinear, so definitely उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, B1 क्रॉस B2 is equal to null वेक्टर आएगा, पहली कंडीशन।
अब अगर आप इधर AB वेक्टर सोचते हो, सपोज दिस इज आवर AB वेक्टर, तो AB वेक्टर और B1 सेम और अपोजिट डायरेक्शन में नहीं, सो हियर आप क्या करेंगे एंड AB, B1 are collinear, so therefore AB cross B1 is null vector. So AB cross B1 will be null vector. So AB cross B1 will be null vector. ठीक है? So AB cross B1 is null vector. AB cross B1 is null vector. तो वो क्या आएगा? A2 minus A1 cross B1 will be AB और B1 कैसे आएंगे? AB और B1 कैसे आएंगे? AB और B1 सेम और अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, सॉरी आर नॉन कोलिनियर, तो डेफिनेटली इनका क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर नहीं आएगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, आप अगर ध्यान से देखो तो कोइंसिडेंट लाइंस में B1 क्रॉस B2 नल वेक्टर था, पर पैरेलल और कोइंसिडेंट में डिफरेंस यही है कि A2 A1 क्रॉस B1 इज नॉट इक्वल टू नल वेक्टर, और कोइंसिडेंट में A2 A1 क्रॉस B1 कितना था नल वेक्टर। ये डिफरेंस है पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट के लिए। सो B1 क्रॉस B2 निकालने का नल वेक्टर आएगा दोनों में, कोइंसिडेंट और पैरेलल, पर AB क्रॉस B1 कोइंसिडेंट में नल वेक्टर आएगा और पैरेलल में AB क्रॉस B1 नल वेक्टर नहीं आएगा। सो ये 1 और 2 this is 2. So 1 and 2 are conditions for lines L1 L2 to be parallel. So 1 and 2 are conditions for lines L1 L2 to be parallel. Okay. अब कोप्लेनर है तो उसके बारे में मुझे पूरा वापस लिखना नहीं है कि A2 box of A2 minus A1. Okay, here पैरेलल लाइंस है तो बॉक्स ऑफ A2 A1 तो कोप्लेनर है। Let me write here parallel lines L1 L2 वो कोप्लेनर होंगे, आप कोप्लेनर, तो आपको पता है कि therefore box of AB B1 B2 is 0, उसका मतलब क्या आएगा? Should we write this? We don't write this. Okay, so therefore box of कितना A2 minus A1 B1 B2 will be 0, और उसको आप कैसे लिख सकते हो? वेक्टर AB B1 और B2 एक ही प्लेन में है, so they are coplanar. So therefore since parallel lines are coplanar, so AB B1 B2 are coplanar vectors, so box of AB B1 B2 is 0, तो ये बॉक्स भी 0 आएगा। तो इसको कैसे लिखोगे? A2 minus A1 dot B1 cross B2 is 0। ये आपको रिवीजन ऑफ थियरी करा देगा जब फॉर कोप्लेनर लाइंस जब होती है तो बॉक्स ऑफ AB B1 B2 या बॉक्स ऑफ A2 minus B1 B2 0, तो आप कैसे सोच सकते हो कि A2 minus A1 dot B1 cross B2 is 0। ये हो गया? Yes, so that finishes the theory for parallel lines। कैसे आइडेंटिफाई करना है ये एक्स्ट्रा एक नोट में लिख लेना, यहाँ पे आप नोट लिख लेना, ठीक है? नहीं, एक्स्ट्रा यहाँ पे खत्म हो गया कि फॉर लाइंस टू बी पैरेलल, और ये मैंने एक्स्ट्रा आपको समझा दिया रिवीजन में। थर्ड टाइप ऑफ लाइंस कैसी थी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। So L1 and L2 are intersecting lines. Here L1 L2 intersect L1 L2 are intersecting lines. So can I say L1 and L2 are coplanar? L1 and L2 are coplanar. Therefore, so L1 and L2 are coplanar. So suppose इनका point of intersection P है, दो मीन खाली से लिखते हैं। अब since they are intersecting, एक point पे intersect करेंगे,
So intersecting lines are co-planar, so can I say they determine a unique plane. फिर आप B1 क्रॉस B2 पूरा टेक्निक समझो। यहाँ पे हम लोग क्या निकाल रहे हैं, B1 क्रॉस B2। फिर हम लोग AB निकालते हैं और फिर we observe the intersecting lines है, तो यहाँ पे क्या होगा, they determine a unique plane. Okay, so L1 and L2 are two intersecting lines. This is L1, this is L2. Suppose they intersect at point P. तो L1 का डायरेक्शन क्या था, B1 बार, L2 का डायरेक्शन क्या था, B2 बार, और L1 पे जो पॉइंट था वो था A, A1 बार, और L2 पे जो पॉइंट था वो था B, A2 बार. Now common sense is here, आप चेक करो B1 और B2 कैसे होंगे, they are not in same or opposite direction. So B1 B2 are non-collinear, So B1 and B2 are non-collinear vectors. So therefore can I say B1 cross B2 क्या आएगा, नॉट इक्वल टू नल वेक्टर. हमको पहले दो कंडीशन चाहिए कि इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसे हम इसको फाइंड करें. अगर L1 और L2 इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो क्या होगा, और B1 क्रॉस B2 क्या आएगा, नॉट इक्वल टू नल वेक्टर. ओके, दूसरा हियर अगर आप देखो वेक्टर AB B1 और B2, वेक्टर AB वेक्टर B1 और वेक्टर B2 एक ही प्लेन में है. सो here vector AB B1 B2 are coplanar, so definitely क्या आएगा, therefore box of AB B1 B2 क्या आएगा, 0. box of AB B1 B2 0 आएगा. अब box of AB B1 B2 0 आया, उसका मतलब क्या, box of A2 minus A1 B1 B2 is 0. Finished. ये दो कंडीशन होंगी. Therefore box of A2 minus A1 B1 B2 वो कितना आएगा, 0. उसी चीज को आप कैसे सोच सकते हो, A2 minus A1 dot B1 cross B2 क्या आएगा, 0. This is our second condition in terms of A1 A2 B1 B2. आप देखो चारों टाइप्स ऑफ लाइंस आइडेंटिफाई करने के लिए यही आपको चाहिए, A1 A2 B1 B2. तो पहली कंडीशन क्या होगी, B1 क्रॉस B2 नॉट इक्वल टू वेक्टर, और दूसरी बॉक्स ऑफ A2 माइनस A1 B1 B2 0. तो 1 2 आर कंडीशन फॉर लाइंस L1 and L2 to be intersecting, for lines L1 and L2 to be intersecting, for lines L1 and L2 to be intersecting. हो गया. So 1 and 2 are conditions for lines L1 and L2 to be intersecting. और हाँ ये co-planar है, since they are ये L1 और L2 intersecting lines है, तो co-planar lines हो, co-planar lines है, तो भी ये कंडीशन आपको याद है, तो वो वापस आ गया. That part is clear. और fourth type of lines, और हाँ distance between two intersecting lines क्या होता है, distance between two intersecting lines, distance between two intersecting lines कितना होता है, 0. Okay, just 1 minute. distance between two intersecting lines कितना है, 0. ये आपको याद रखना पड़ेगा. ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइन आपको याद रखना पड़ेगा, कितना है, 0. अब क्या रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, फोर्थ टाइप ऑफ लाइंस आर स्क्यू लाइंस. सो फोर्थ टाइप ऑफ लाइंस क्या है, स्क्यू लाइंस. मतलब L1 and L2 आर स्क्यू लाइंस. हियर L1 L2 are skew or non-collinear. उसका मतलब since they are non-collinear, so L1 and L2 are non-parallel. वो
पैरेलल नहीं है, एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, जस्ट रेफरेंस के लिए, हाँ, दे विल नॉट डिटरमाइन अ यूनिक प्लेन, इसलिए मैं एक प्लेन नहीं बता रहा हूं L1 और L2 से पास होता हुआ। L1 पे कौन सा पॉइंट है? ओके, we cannot represent the two skew lines on the board, but मैं आपको आइडिया कैसे दे रहा हूं कि एक प्लेन में नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, मतलब एक यूनिक प्लेन L1 और L2 से पास नहीं हो रहा है। Suppose these two lines are L1 and L2। L2 का डायरेक्शन क्या था? V2 बार। L1 का डायरेक्शन कितना था? B1 बार। L2 पे कौन सा पॉइंट था? B, A2 बार, और L1 पे कौन सा पॉइंट था? A, A1 बार, और हम लोग वेक्टर AB निकालते थे। If you get break it. So now, since they are non-parallel, तो B1 और B2 सेम और अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होंगे। Since they are non-parallel, the vectors B1 और B2 कैसे होंगे? Vectors B1 और B2, vectors B1 और B2 कैसे होंगे? Vectors B1 और B2 here B1 B2 are non-collinear, उसका मतलब B1 cross B2 is not equal to null vector, obviously because they are not parallel। और दूसरा, and वेक्टर AB B1 और B2 कैसे होंगे? R नॉन कोप्लेनर हो जाएंगे, क्योंकि वो यूनिक प्लेन डिटरमाइन नहीं करता। सो उनका बॉक्स A1 B1 B2 का बॉक्स 0 होगा। A1 B1 AB, yes, नॉन कोप्लेनर होते हैं, और AB क्या होता है? बॉक्स ऑफ A2 minus A1 B1 और B2 0 नहीं होगा। इसका मतलब A2 minus A1 डॉट B1 क्रॉस B2 0 नहीं होगा, और A2 minus A1 डॉट B1 क्रॉस B2 0 नहीं होगा। ठीक है, so ये हो गई कंडीशंस 1 और 2। So 1 and 2 are conditions 1। So 1 and 2 are conditions for lines L1 and L2 to be skew or non-coplanar। Okay, the condition for the lines L1 and L2 to be skew or non-coplanar finished up। Just only materials of water, then I will continue। ओके, राइट, अब 3 पॉइंट्स जो आज के वीडियो लेक्चर के स्टार्टिंग में हमने किए थे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू स्क्यू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट टू गिवन लाइन, उसका क्विक रिवीजन मैं आपको दे देता हूं। तो सारी थियरी हो गई। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। तो आपको याद रखना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस कैसे निकालेंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस क्या था? दो स्क्यू लाइंस कौन सी थी? L1 और L2। नो नीड फॉर द डायग्राम, और अगर आप डायग्राम ड्रॉ कर देते हो, नो नीड, अभी जो ड्रॉ किया वही भी चलेगा कि जीरो स्क्यू लाइंस ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस L1 L2। L1 क्या था? R is A1 plus lambda B1। L2 क्या था? R is A2 plus mu B2। lambda belongs to R, mu belongs to R। अब here L1 and L2 are skew lines, here
L1, L2 are skew. Since they are skew lines, they have to be correct. कौन सी कंडीशन आनी चाहिए? B1 और B2 नॉन पैरेलल हैं, so B1 क्रॉस B2 is not equal to null vector, पहला। और दूसरा box of and box of A2 minus A1 B1 B2 not equal to 0, सेकेंड कंडीशन ये है। तो उस लॉजिक से A2 minus A1, therefore A2 minus A1 dot B1 cross B2 will not be equal to 0, so therefore shortest distance between skew lines L1 and L2 कितना आएगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्क्यू लाइंस L1 and L2 कितना आएगा? मॉड ऑफ AB क्रॉस मॉड ऑफ, सीधा करो, मॉड ऑफ AB मॉड ऑफ AB ओके कितना था? मॉड ऑफ A2 माइनस A1 मॉड ऑफ A2 माइनस A1 कितना था? मॉड ऑफ, सीधा डिस्टेंस मैंने आपको क्या बोला था याद रखने को? हाँ, मॉड ऑफ A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। क्वेश्चन क्या होगा? Find the shortest distance at prove that the lines are skew and find the shortest distance between the two skew lines। तो सबसे पहले हम L1 और L2 में से B1 आइडेंटिफाई करेंगे, B2 आइडेंटिफाई करेंगे, A1 और A2, फिर B1 क्रॉस B2 नॉट इक्वल टू नल बताएंगे, फिर हम A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 नॉट इक्वल टू 0 बताएंगे, फिर हम बोलेंगे ये स्क्यू लाइंस है, तो फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ A2 माइनस A1 डॉट B1 cross B2 over mod of B1 cross B2। अब shortest distance between two parallel lines, shortest distance between two parallel lines वो कितना था? सीधा आपको फॉर्मूला याद रखना है कि shortest distance between two parallel lines, दो parallel lines कौन सी थी? L1 और L2। so here L1 क्या था? L1 क्या था? L1 था R bar is A1 bar plus lambda B bar और L2 क्या था? R bar is A2 bar plus mu B bar। दोनों में डायरेक्शन सेम रखा अगर आपको याद है तो, mu belongs to bar। Here L1 and L2 are parallel lines। Here now L1 parallel to L2, तो ये था हमारा लाइन L1 और ये है हमारी लाइन L2। ओके, तो L1 का डायरेक्शन क्या हमने रखा है? B बार। L2 का डायरेक्शन भी क्या रखा है? B बार। दोनों का डायरेक्शन सेम है, L1 और L2 का। ठीक है, और इस पे जो पॉइंट था वो था A1 बार और इस पे जो पॉइंट था वो था B A2 बार और ये B बार। इस वाला लाइन L2। तो shortest distance between two parallel lines here ही क्या है? Shortest distance between the two parallel lines L1 and L2, अगर आपको सीधा फॉर्मूला याद है तो mod of AB क्रॉस B अपॉन 1D, सीधा वही फॉर्मूला था। The shortest distance between two parallel lines, shortest distance between two parallel lines, so vector AB। Okay, so direction of L1 क्या था? Direction of L1 is equal to direction of L2। तो यहाँ से हम नहीं कह सकते कि ये दो लाइंस पैरेलल हैं। पैरेलल लाइंस है, डायरेक्शन सेम है, बट हियर A1 bar it belongs to L1, but A1 bar does not belong to L2, and BA2 bar it belongs to
L2, but that point BA2 bar does not belong to L1. ये हो गया प्रूफ कि ये दो लाइंस कैसी हैं, पैरेलल. अब here AB, वेक्टर AB और B bar are non-collinear, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट चेक कर, डायग्राम से ही पता चलेगा. AB क्रॉस B नॉट इक्वल टू नल वेक्टर, उसका मतलब A2 minus A1 क्रॉस B is not equal to null vector. तो हमने थियरी क्या रखी थी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2 क्या आएगा, फॉर्मूला आ रहा है मॉड ऑफ AB क्रॉस L अपॉन मॉड ऑफ AB क्रॉस B अपॉन मॉड B. मैं मॉड ऑफ AB क्रॉस L क्यों बोल रहा हूं कि वो पहले थियरी ओल्ड कोर्स में पूरा उल्टा पुल्टा नोटेशन है अभी हमको, तो मुझे भी याद रखने में थोड़ी तकलीफ होती है, बट आई जस्ट टेक अ पॉज एंड देन आई रिवाइज. द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको याद रखना है सीधा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन parallel lines L1 and L2, between parallel lines L1 and L2, between parallel lines L1 and L2 क्या आएगा, mod of AB cross B, mod हमने AB cross B भी निकाला है, will be equal to mod of AB cross B upon mod B. finished. और हाँ B बार डायरेक्शन है इसलिए वो नल वेक्टर नहीं है. और इसी चीज को आप कैसे लिख सकते हो, mod of A2 minus A1, वैसे उन्होंने दिया है mod of A2 minus A1, mod of A2 minus A1 which is equal to mod of A2 minus A1 cross B upon okay. Yes, सीधा याद रखोगे these two are parallel lines, the shortest distance between them is mod of A2 minus A1. L1 parallel to L2 डायग्राम में सीधा थियरी का काम आपको तो भी चलता है. और लास्ट पॉइंट which is not given in the textbook, पर हमको याद रखना है कि perpendicular distance from outside point to the given line. Just 1 minute. That will be the last point for today, and that will finish the revision of all the theories which we did in today's video lecture as well as last video lecture. अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए. गिवन लाइन L है, R bar is equal to A bar plus lambda B bar. outside point P bar, lambda belongs to R. तो आपको सीधा you just remember this, okay, this is our line L, point on line L is A bar, and the direction of the line is B bar. The outside point is P bar. We want to find, let the foot of the perpendicular be M. तो सीधा आपको याद रखना है कि here the diagram, अगर कुछ स्टूडेंट तो सीधा याद रखेंगे mod of AP cross N upon mod of AP cross B upon mod of AP cross B upon mod B, mod of AP cross vector B upon mod B. Given here P bar does not belong to line L, which is R bar is equal to A bar plus lambda B bar. Now A bar है, डायग्राम से ही आपके पास A बार एंड P बार है. सो वेक्टर AP क्या होगा, सो वेक्टर AP is P bar minus A bar. Now it's obvious AP और B bar are non-collinear. Therefore AP cross B not equal to null vector. So ये कितना आएगा, P bar minus A bar cross B is not equal to null vector. ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आपको याद रहना चाहिए. फाइनली जो फॉर्मूला रट्टा मारना है वो तो आपको पता चल गया होगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
and the distance from P bar to distance from outside point, therefore कि हमने निकाला ऐसे, we'll have to find this one only. तो सीधा आपको याद रखना है कि shortest perpendicular distance from P bar to line L, R bar is equal to A bar plus lambda B bar. Lambda B bar is equal to, डायग्राम से आपको पता चलेगा PM और वो डिस्टेंस कितना है, मॉड ऑफ AP. सीधा ऑब्वियस वेक्टर जो AP है, ये वेक्टर AP जो है, वेक्टर AP है और वो P और कोऑर्डिनेट है, तो आपको सीधा याद रखना है मॉड ऑफ AP क्रॉस B अपॉन मॉड B. और आप देखो सारे फॉर्मूलाज में डॉट, क्रॉस और बॉक्स वो सभी आता है वेक्टर अलजेब्रा. अगर आपको वेक्टर अलजेब्रा बेसिक नहीं आता है तो ये सारे कैलकुलेशंस अब आप नहीं कर पाओगे. सो दैट इज P bar minus A bar, this is equal to mod of P minus A cross B upon mod B. Mod of AP cross B upon mod B, और वो हो जाएगा mod of B minus A cross B upon mod B. हाँ, B is not equal to zero vector. So perpendicular distance, shortest perpendicular distance from outside point P bar to the line L R bar into A bar plus lambda B bar is PM. डायग्राम से सीधा, और मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया. ठीक है, so that's it for today. Work hard, take care, don't waste time. I will finish the remaining sums of exercise 11.2 based on the theories taught in today's video lecture as well as the previous video lecture in the next upcoming video lecture. That's it for today. Work hard, take care, don't waste your time. Now only 3.5 months are remaining for your board exams, so become very serious. And if you work hard very seriously for the next 3.5 months, आराम से every student can score above 70 in maths. Okay, so that's it for today. Thank you. Work hard, take care.